मल्टीपल व्यू पॉइंट्स प्रेजेंटेड होते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि ऑथर का पर्सपेक्टिव कहाँ पर है। ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग क्यों बच्चे कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बट अगर आपको एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स इनका यूसेज समझ में आता है तो आपको भाषा में पकड़ बनानी बहुत आसान हो जाती है, राइट। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन पैरा जंबल्स, इन पैरा समरी, इन पैरा कंप्लीशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो अनडिनाइबली आपके लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑथर न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं डिस्कशन में, पर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, या ऑथर का पीओवी क्या है। Hi my dear students, I hope you guys are doing well. So if you are a CAT aspirant and you are worried about how to tackle reading comprehension, this video is definitely for you. So here we are going to talk about that what are those 5 tricks in reading comprehension which are created to trick you and trap you. So let's get started. My name is Juhi Narula. And of course, we are going to discuss in detail that how do we outsmart them, right? So what should be the strategic approach? What should be done rightly so that you're able to sail through and you're able to do exceptionally well in reading comprehension, right? चलिए, so let's begin with the discussion. तो पहला होता है author as puppet master trick. जो आज डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत नया होगा एंड यू मस्ट हैव नॉट heard about this very frequently, but trust me, if you're going to understand all these tricks, your journey to decode RCs would really become simpler. So here what actually happens is कि author multiple viewpoints को present करता है, but subtly एक viewpoint की तरफ deviate कर जाता है। तो क्योंकि मल्टीपल व्यू पॉइंट्स प्रेजेंटेड होते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि ऑथर का पर्सपेक्टिव कहाँ पर है। यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करता है to understand how adjectives and adverbs are used in the discussion, right? What are the word choices the author has used? What are the examples the author has given, right? तो आपको लगता क्या है कि multiple viewpoints presented है तो सारे ही author support कर रहा है, जबकि कई बार अपनी argument में premise को add करने के लिए या अपने conclusion तक पहुंचने के लिए author viewpoints लेता है, right? So आपके लिए important है कि आप ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, while some economists naively clinch to classical theories, other recognize the evolving complexity of modern markets. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आप एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स को ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप आसानी से इन ट्रिक्स को सेल थ्रू कर जाओगे। Naively, can you see the word choices, right? This is the observation which is expected from you while you are reading any passage, you're reading any article, while you are practicing, while you are appearing for mocks, or whatever you are doing when you are preparing for the reading comprehension section. And here you see others recognize the evolving complexity of modern markets. So if you could see the second part, you would be able to very easily understand, if you're able to concentrate on the word naively, that the author is definitely tilted towards the second perspective. अब इस तरह की आपको ability to read in between the lines gather करनी है while you are an aspiring MBA aspirant, ठीक है। तो कैसे आउटस्मार्ट करेंगे, जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को क्लियरली ऑब्जर्व करना है। तो आप देखते होंगे कि ट्रेनर्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? जैसे विक्रांत सर भी कहते हैं। तो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग क्यों बच्चे कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बट अगर आपको एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स इनका यूसेज समझ में आता है तो आपको भाषा में पकड़ बनानी बहुत आसान हो जाती है, राइट? सो यू शुड आस्क विच व्यू इज द ऑथर सटली नजिंग मी टूवर्ड्स, राइट? कहीं ना कहीं ऑथर आपको अपने पीओवी की तरफ लेके जाएगा और वो डायरेक्टली तो कह नहीं देगा कि सी दिस इज माय पीओवी। सो catch those subtle hints so that you're able to sail through the tricky passages, ठीक है? और वो सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट करिए जो ओवर सिंप्लीफाई करते हो न्यूट्रलिटी को, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दैट यू शुड कंसिडर। अब दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी है डेंस डिस्ट्रैक्शन ट्रिक, और इसमें तो आप पक्का ही फंसते हो। अब होता क्या है इस पर्टिकुलर
चैलेंज में कि कई बार स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद साइंस पैसेजेस ना इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और आप बेचारे ठहरे ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के स्टूडेंट और आपको क्वांटम थ्योरी समझा रहे हैं, आपको कोई हवा ही नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि यार दुनिया में चल क्या रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। एग्जैक्टली वही आपका ट्रिक है। तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपका बैकग्राउंड हो फिजिक्स का, ऐसा तो बोला नहीं है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ही पेपर देंगे या फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। इट्स अ स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम, राइट। तो कोई भी एग्जाम जो मल्टीपल डोमेन से स्टूडेंट्स को लेता है और मल्टीपल डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एसेंशियली दैट्स द टेस्ट ऑफ लॉजिक। तो आप क्या करते हो, कई बार उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में इतना फंस जाते हो कि आप ओवरऑल इंटेंट और फ्लो और मेन आइडिया को पकड़ ही नहीं पाते। ऐसा अक्सर आपने देखा भी होगा, कॉमन परेशानी है ये। तो बेसिकली जैसे एक पैराग्राफ ने क्या किया, 5 टाइप के ग्लेशियर्स को एक्सप्लेन किया एंड द पैसेज वाज अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, ठीक है। सो आपको इस तरीके से पैसेज को गढ़ा जाता है या सिलेक्शन आरसीज का एग्जाम्स में किया जाता है कि बच्चा फंस जाए, बच्चा वो ग्लेशियर्स की इंफॉर्मेशन को ही डिकोड कर जाए और मेन टॉपिक से भटक जाए। तो ध्यान रखिए कि इसका सिंपल तरीका रिविजिट करिए, और ये जब मैपिंग स्ट्रैटेजीज आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको डिटेल में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना सिखाऊंगी। बट अभी के लिए डोंट गेट लॉस्ट, राइट। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द होलिस्टिक रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सपोज आपको बोला कि एक ग्लेशियर के फीचर्स है, तो आपको पता चल गया कि एक्स ग्लेशियर के फीचर्स ही हाईलाइटेड है, तो क्वेश्चन आएगा वी कैन रिविजिट। अभी अपना प्रेशियस टाइम उस पर मत लूज करिए, राइट। और जो डेंस सेक्शन है उसको फास्टर रीड करिए, वहां पे आप एक क्विक नोट बना लीजिए कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट, और ट्रांजिशन वर्ड्स को जरूर पकड़िए। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आपके कोई सीनियर मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ ट्रांजिशन वर्ड्स को ऑब्जर्व करने का। और ये अगर आपने आदत बना ली, this will definitely help you in para jumbles, in para summary, in para completion और reading comprehension में तो undeniably आपके लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इज द फेक कॉन्फ्लिक्ट ट्रिक। तो आप कह रहे होंगे मैम आज आप बिल्कुल नई नई बातें कर रही हैं। अब इस ट्रिक में होता क्या है, यहाँ पे दो आइडियाज आपस में आपको दिखते हैं कि अपोज कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहे हैं, बट ये एक्चुअली एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको यही टेस्ट किया जाता है कि इस तरीके के ट्रैप्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या आप ऊपरी तौर पे इंफॉर्मेशन पढ़ के अपने आंसर को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, वाइल जीन्स शेप बिहेवियर एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो लोगों को लगता है कि आइदर और सिचुएशन, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा नहीं है कि जीन्स शेप बिहेवियर दिस इज वन पीओवी या फिर एनवायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। यहां पर ट्रांजिशंस अगेन, सो जीन्स डू शेप, they are complementary information, they are not direct contradiction. I hope you understand this. तो yes, transition word है, but while भी है, also भी है। तो जीन शेप बिहेवियर तो करते हैं, पर environment का भी रोल रहता है। सिर्फ environment का या सिर्फ जीन का रोल either side वाली बात नहीं है, both have to be taken together, right? So be very very careful. तो जब भी आपको ऐसे दो व्यू पॉइंट्स दिखे, जहां पे दो व्यू पॉइंट्स ऑपोजिट कैसे दिखेंगे, जहां पे आपको नेगेटिव ट्रांजिशन वर्ड्स दिखते हैं अक्सर, तो आप देखिए कि क्या वो पॉइंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इस तरह की आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी और एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस को लेकर हमेशा सस्पिशियस रहिए। ये अगर आपने हमारी बुक देखी है वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें मैंने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। वहां पर मैंने बोला है कि दिस इज हेजी, राइट। सो हेजी कंपैरिजंस की unnecessary comparisons में H is hazy comparisons, P would be your partially correct answer, U would be unstated information। वैसे जब आपको मैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कराऊंगी तब हम डिटेल में करेंगे। S will be basically strong choices, right? Stronger than the claim made by the author. So जब भी आपको words मिले all, always, none, only, must, नेवर, इनको लेकर आपको हमेशा सस्पिशियस रहना है, ठीक है। इनको देख के ही आपकी घंटी बजनी चाहिए कि यार ये मेरे को ट्रिक करने के लिए साजिश रची जा रही है। चलिए नेक्स्ट इज द ऑथर डिसअपियर्स ट्रिक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस पर्टिकुलर ट्रिक में क्या होता है कि ऑथर का जो वे ऑफ राइटिंग होता है वो एक डिटैच्ड स्टाइल का होता है, अकेडमिक टोन होती है, जहां पे उसका गोल होता है टू पास ऑन मोर इंफॉर्मेशन, जहां पर
दूसरे व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, पर डायरेक्टली ऑथर अपना ओपिनियन नहीं देता। सो और फिर इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज ऑथर्स ओपिनियन, तो ऑथर न्यूट्रल साउंड कर रहा है डिस्कशन में, पर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, या ऑथर का पीओवी क्या है। जैसे अगर आप देखिए, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कैपिटलिज्म अंडरमाइंस इक्वालिटी, तो क्रिटिक्स का पर्सपेक्टिव है, ऑथर का पीओवी तो आया नहीं। प्रोपोनेंट्स हाउएवर व्यू इनइक्वालिटी एज अ नेसेसरी इंसेंटिव, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिक्स का पीओवी है, प्रोपोनेंट्स का पीओवी है, ऑथर ने डायरेक्टली अपना पीओवी प्रेजेंट ही नहीं किया। सो आप इन दैट केस न्यूट्रल टोन की तरफ जाते हैं और आप कह देते हैं कि देयर इज नो ओपिनियन एज सच, राइट। और कोई मे भी हो सकता है कि किसी एक लाइन में आपको पार्शली डेविएटेड दिखे ऑथर, बट देन most of the times understand that there could be a possibility where the author is just passing on the information, right? So आप फिर भी subtle clues को observe करिए, transitions देखिए, right? Evaluative phrases को observe करिए और अपना opinion मत डालिए, right? So we say in CAT it is strictly evidence based reasoning, यानी कि answer will come from the text, right? तो ध्यान रखिएगा, यही मैं कहती हूँ कि अगर information भी आपको लगता है कि आपके डोमेन के बियॉन्ड है तो घबराइए मत, क्योंकि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप घबरा जाते हैं कि मेरे नॉलेज का टेस्ट है। नॉलेज का तो टेस्ट नहीं है ना, लॉजिक का टेस्ट है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, अब आप उससे कैसे सेंसिबली लॉजिक को निकाल सकते हैं, राइट। और फिफ्थ विल बी द एम्बिगुअस टोन ट्रिक। नाउ एम्बिगुअस टोन ट्रिक में क्या होता है, यहां पर एडमिरेशन और क्रिटिसिज्म का कई बार ब्लेंड हो जाता है, जैसे स्केप्टिकल एडमिरेशन या गार्डेड ऑप्टिमिज्म, कि ऑथर को लगता तो है कि एक थ्योरी काम कर सकती है, पर उसमें ऑथर को 4 चैलेंजेस दिख रहे हैं, राइट। तो कई बार दोनों इमोशंस को रीडर अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता और वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे वाइल फ्रूट्स इनसाइट्स रेवोल्यूशनाइज्ड साइकोलॉजी, तो देख रहे हैं कि अगर हम रेवोल्यूशनाइज टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट मीन्स वहां तो ऑथर अगर रेवोल्यूशन ले आया तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहा है, पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ गया यहां पर कि हिज थ्योरीज रिमेन स्पेक्युलेटिव एंड अनवेरिफाइबल। तो both the ideas are there. So in the first half, yes, the author is appreciating, but then the author is slightly critical also, right? So ऐसा नहीं है कि 0 और 1 में ही कहानी चलेगी, तो contrast words को spot करिए, transitions को observe करिए, right? और अगर आपको लगता है कि options close है तो एक ऐसी choice जो balanced viewpoint present करती हो उसकी तरफ जाइए, ठीक है। सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, अगर आप इनको समझेंगे और ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। देखिए जो हम लर्न करते हैं उसका हमें प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी एक्सपीरियंस करना है। तो जब भी आप आरसीज पढ़ें, जनरल रीडिंग करें, कोई आर्टिकल पढ़ें, ऑब्जर्व करिए इन सारे ट्रिक्स को, एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। तो जब हमारी इनिशियल प्रेपरेशन फेज है तो उसमें हमारा गोल क्या है, उसमें हमारा गोल है कि हमारी फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो। अगर हमारी फाउंडेशन सॉलिड होगी तो हम कितने भी टेक्निकल आरसीज एग्जाम में कराएंगे, पर अगर हमारी फाउंडेशन कमजोर रह गई तो हमें मुश्किल आएगी, राइट। सो आई होप दिस वीडियो helped you. Keep working hard, stay consistent. Vijay Bhav.